کاش کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا۔ خدا مجھ پر رحم کرے۔ میں اپنی بھتیجی کی موت کا خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے اس کے لیے موت کو ایک حسین و جمیل پیکر میں خود اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ یہ حالات اتنے پر اسرار، اتنے عجیب اور دہشت انگیز ہیں کہ تم یقین نہ کرو گے کہ اس دنیا میں ایسا بھی ممکن ہے۔ باخدا مجھ جیسا احمق انسان روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور کچھ نہ سمجھ سکا۔ میری پیاری لڑکی کا اس حسین بلا نے سارا خون چوس لیا اور میں دم تک نہ مار سکا۔ کاش کہ مجھے احساس ہو جاتا۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہورر سٹوری کارمیلا ویمپائر ایپیسوڈ نمبر 5۔ میں نے دیکھا کہ والد صاحب سخت مضطرب اور گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانے میں بھی دلچسپی نہ لی۔ چند لقمے بمشکل لیے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ کچھ لکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر لکھنا بند کر دیا۔ وہ بڑی شفقت سے انہوں نے مجھے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ ابا خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں بتائی جا سکتی؟ انہوں نے چند لمحے غور سے میری طرف دیکھا، پھر پھیکا سا تبسم ہونٹوں پر لا کر بولے، نہیں بیٹی، بھلا ایسی کون سی بات ہوگی جو میں تم سے چھپاؤں؟ صرف اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ تمہیں خواہ مخواہ پریشانی ہوگی، نہ سمجھ ہو اس لیے۔ میں نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پریشان دیکھ کر بھی میں افسردہ نہ ہوں گی؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر میں خود حیران ہوں کن الفاظ میں تم سے اس حادثے کا ذکر کروں جو سہ پہر کو نہ صرف میرے کانوں تک پہنچایا گیا بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ اور پھر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ خدا خیر کرے، والد صاحب تو فولادی اعصاب کے مالک ہیں۔ اگر یہ کسی حادثے سے پریشان اور مضطرب ہو سکتے ہیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نوعیت کیسی بھیانک ہوگی۔ انہوں نے خود ہی کہنا شروع کیا، پیاری بیٹی، تم جانتی ہو ہر مرحلے پر خدا کی اور اس کی مشیت ہی کام آتی ہے۔ سہ پہر کو مزاروں میں سے ایک شخص آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ نوجوان بہن عالم نزاع میں ہے۔ چند روز قبل اس نے غیر معمولی تھکن اور کمزوری کی شکایت کی۔ اس سے پہلے اسے ہلکا سا سر درد اور بخار بھی کبھی نہ ہوا تھا اور اس کا صحت مند جسم گھلنے لگا۔ اس کے چہرے پر پس مردگی چھا گئی۔ لڑکی کا بیان، رات کی تاریکی میں کوئی ذی روح اس کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ بیدار ہونے کے بعد حالت ایسی ہوتی ہے جیسے برسوں کی مریض ہو، ہلنے جلنے کی سکت بھی نہیں رہتی۔ کسانوں نے ٹونے ٹوٹکے سے اس کا علاج کیا مگر بے سود، اور آج شام سورج غروب ہونے سے چند لمحے بیشتر اس کا انتقال ہو گیا۔ والد نے گہری آہ بھری اور پھر سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ حیرت کن بات یہ تھی کہ جو ہی لڑکی نے جان دی اور اس کی نبض ساکت ہوئی، اس کے جسم کی گم شدہ توانائی لوٹ آئی۔ حیرت کن بات یہ ہے کہ جو ہی لڑکی نے جان دی اور اس کی نبض ساکت ہوئی، اس کے جسم کی گم شدہ توانائی لوٹ آئی۔ اس کا چہرہ حسب معمول سرخ و سفید ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی چمک دمک میں بھی پہلے سے اضافہ ہو گیا تھا۔ کسان تو یوں ہی تو ہم پرست ہوتے ہیں۔ انہوں نے لاش کے قریب جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں مجبور کیا تو اس حد تک تیار ہوئے کہ تابوت اٹھا کر قبرستان تک لے جائیں اور گورکن کی نگرانی میں چھوڑ دیں۔ دفن کا مرحلہ اب کل طے کیا جائے گا۔ اس علاقے میں یہ دوسری پر اسرار انسانی موت ہے اور میں اسی وجہ سے مضطرب ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آیا کہ یہ کوئی مرد ہے یا واقعی کوئی بدروح ہے؟ میں نے جملہ مکمل کر دیا اور وہ پھر مسکرائے اور کہنے لگے، میں نے ایک آدمی کے ہاتھ ڈاکٹر کو پیغام بھیج دیا ہے کہ صبح ہوتے ہی چل پڑے تاکہ دفن سے پہلے یہاں پہنچ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی لاش کو ایک نظر دیکھ لے۔ کل میں بھی آپ کے ساتھ قبرستان چلوں گی اور لاش دیکھوں گی۔ آپ مجھے لے چلیں گے؟
हाँ ज़रूर ले चलूँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कम हिम्मत और बुज़दिल बनकर जिए। उन्होंने कहा, अब जाओ और सो जाओ। वो रात भयानक ख्वाब देखते कटी। लाशें ही लाशें, चलती फिरती लाशें, बड़ी बड़ी चमगादड़ें झपट रही थी। चमगादड़ें जिनके चेहरे इंसानों के से थे और उनके खून के जबड़ों से खून टपक रहा था। सुबह उठी तो तबीयत सख्त मजमल थी। जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था, जैसे किसी ने मेरी खूब पिटाई की हो। ताहम नाश्ते के लिए आना ही पड़ा। ऐन उसी लम्हे बूढ़ा डॉक्टर हाथ में थैला संभाले कमरे में दाखिल हुआ। वालिद ने खुश आमदीद कहा और उसे भी नाश्ते में शरीक कर लिया। इस दौरान में कोई गुफ्तगू ना हुई। फारग होकर हम सब घोड़ा गाड़ी में सवार हुए और कब्रिस्तान की तरफ चले, जो किले से जनूब की तरफ कोई 5 मील दूर डलवानी राह पर था। रास्ते में वालिद और डॉक्टर दबी जुबान से कुछ ऐसी बातें करते रहे कि कोशिश के बावजूद एक लफ्ज़ भी मेरी समझ में ना आया। कब्रिस्तान में गोरकन और किसानों के एक छोटे से ग्रोह के सिवा कोई न था। वह सब वालिद का इंतज़ार कर रहे थे। गोरकन की कोठरी में ताबूत रखा था। हम तीनों अफराद कोठरी में दाखिल हुए। वालिद और डॉक्टर ने मिलकर ताबूत का ढकना उठाकर नीचे रखा। हम दम बखुद रह गए। मैंने भी धड़कते दिल से ताबूत में झांका और बमुश्किल अपनी चीख रोक सकी। ताबूत के अंदर जो कुछ था, मैं कसम खाकर कह सकती हूँ, वो लाश हरगिज ना थी। उसकी आंखें खुली और उनमें इतनी चमक थी कि निगाह मिलाना दुश्वार हो गया, और उसके दोनों हाथ सफ़ेद कफन से बाहर निकले हुए और होंठ कबूतर की तरह सुर्ख और तर। डॉक्टर ने झुककर लाश के दिल पर हाथ रखा, फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से टटोले और मायूस होकर गर्दन नफ़ी में हिलाई। इसमें ज़िंदगी की रमक मौजूद नहीं, मगर ज़ाहरी हालत ऐसी है कि इसे मरा हुआ नहीं कहा जा सकता। दिल की हरकत बिल्कुल बंद। बहरहाल इसे दफन कर देना चाहिए। तदफीन के मराहल जल्दी ही तय हो गए और हम सब कब्रिस्तान से निकलकर गाड़ी में सवार हुए। किले में आए तो दोपहर हो चुकी थी, लेकिन स्याह बादलों के बायस सूरज का चेहरा नजर ना आया। ऐसे लगता कि किसी भी लम्हे मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। फिजा में सर्दी दम बदम बढ़ती जा रही थी। वालिद डॉक्टर को लेकर सीधे अपने कमरे में चले गए और देर तक ना जाने उनमें क्या गुफ्तगू हुई। आखिर कमरे का दरवाज़ा खुला और दोनों आदमी बरामद हुए, लेकिन इस हाल में कि दोनों बेहद संजीदा थे। मुझे दिखाने को वालिद ने डॉक्टर की किसी सरगोशी पर हल्का सा कहका लगाते हुए कहा। मैं तो ख्वामुख्वा डर गया। अच्छा, ये बात थी। डॉक्टर की रवानगी के बाद वालिद ने मुझे अपने पास बुलाया और अभी बात शुरू ही की थी कि मुलाजिम ने आन खबर कर दी, शहर से तस्वीरें आ गई हैं। आदमी भी साथ है ताकि उन्हें दोबारा उनकी जगह पर लगा दे। वालिद उठ खड़े हुए और सेहन की तरफ चले। मैं भी उनके साथ गई। किस्सा यह था कि हमारे किले में बेशुमार कदीम तस्वीरें, कीमती तस्वीरें सजी हुई थी, जो इम्तदाद ज़माना के बायस खासी धुंधली हो रही थी। गालबन अरसे से उनकी सफाई ना हुई, फ्रेम नीम बसीदा हो गए। वालिद ने ये सब तस्वीरें उतरवा कर शहर करोज के एक मुसव्वर को भिजवा दी थी कि वो उन्हें तरोताज़ा करे और जिनके फ्रेम ख़राब हो गए हैं उनके फ्रेम भी नए बनवा दे। लकड़ी के 2 बड़े बड़े संदूकों में ये तस्वीरें भरकर आईं और मुलाजिम उन्हें संदूकों से निकाल निकाल कर एहतियात से रख रहे थे। जो आदमी उन्हें खच्चर गाड़ी पर लाद कर लाया था वो रोटी खा रहा था। इतने में वो भी मुंह पूंजता हुआ आ गया और वालिद को दम किया। वालिद ने उन तस्वीरों की फहरिस्त अपने कमरे में मंगवाई और पड़ताल शुरू की। मैं एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हे बाद कारमिला भी मुस्कुराती हुई मेरे करीब पड़ी हुई दूसरी कुर्सी पर आ बैठी। मैंने देखा कि उसका चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा तरोताज़ा और उसके गुलाबी रुखसार बेहद शादाब थे। लबों की सुर्खी में भी इजाफा हो गया था। उसने मोहब्बत से मेरा हाथ दबाया और कहा, आहा, इतनी तस्वीरें ये कहाँ से आईं? मैंने मुख्तसर अल्फाज में उन तस्वीरों के बारे में बताया। वालिद ने मुस्कुराकर कारमिला की तरफ देखा, मिजाज पुरसी की और फिर पड़ताल में लग गए। वो जिस तस्वीर का नाम लेते या नंबर शुमार बताते वही तस्वीर फौरन उन्हें दिखा दी जाती। उनमें अक्सर 200 और 300 साल पुरानी थी। बाद 4-4 फुट लंबी और इतनी ही चौड़ी थी।
उनमें बाद मेरी वालदा के ख़ानदानी अफराद की भी थी। यकायक वालिद ने कहा, एक तस्वीर गायब है जो मर्सिया क्रिस्टन नाम की एक खातून की है और तकरीबन 200 बरस पुरानी। ये बहुत मैली हो गई थी, शायद मुसव्वर ने अपने पास ही रख ली हो, क्योंकि उसे साफ करने में उसका खासा वक्त सिर्फ होगा। तस्वीर लाने वाले ने बारी बारी दोनों संदूकों में झांका, फिर एक संदूक से तस्वीर निकालते हुए बोला, जी नहीं, वो तस्वीर भी हाजिर है। संदूक में रह गई थी, मुसव्वर ने उसे साफ करने में बड़ी मेहनत की है। यह कहकर उसने तस्वीर वालिद की तरफ बढ़ाई। अब मुझे याद आया कि मैंने ये तस्वीर पहले भी देखी है। ये 1.5 फुट लंबी और 1.5 फुट चौड़ी थी, जो किले के हाल कमरे के सदर दरवाजे के ऐन ऊपर लगी हुई थी और मर्सिया क्रिस्टन 1698 साफ पड़ा जा रहा था। वालिद ने तस्वीर को एक नज़र देखा और उन पर जैसे सकते का आलम तारी हो गया। वो पत्थर के बुत बने, पलक झपकाए बगैर उसे तकते रहे। इसी हालत में बमुश्किल 2 मिनट गुजरे होंगे कि उन्होंने कहका लगाकर तस्वीर मेरे सामने रख दी। अरे ये तो कारमिला की तस्वीर है, मैंने चिल्लाकर कहा। बिल्कुल कारमिला की तस्वीर, वही नाक नक्शा, वैसी ही आंखें, वैसे ही बाल, वैसी ही ठोड़ी, और देखो इसके गले पर भी कारमिला की तरह नन्हा सा तिल है। कारमिला, ये यकीनन तुम्हारी तस्वीर है। कारमिला ने मेरी बात पर ध्यान ना दिया, बेहिस्सो हरकत बैठी सामने खिला में घूरती रही और उसके होंठों पर खुशी और सरमस्ती की पुरइसरार मुस्कुराहट खेल रही थी। वालिद बोले, हैरत अंगेज, दोनों में खासी मुशाहबत है। अब्बा देखिए, तस्वीर के कोने में सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ नाम भी अब पढ़ा जाता है। ये मर्सिया नहीं, काउंट्स मरकाला क्रिस्टिन है। अम्मी भी तो क्रिस्टिन खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके नाते से मैं भी गोया इसी खानदान का फ़र्द हूँ। ये तस्वर मुझे दे दीजिए और इसे मैं अपने कमरे में तस्वीर को लटकाऊंगी। कारमिला ने कुर्सी पर बैठे बैठे पहलू बदला और उसके मुंह से हल्की सी आह निकली और बड़े दिल गिरफ्ता लहजे में बड़बड़ाई, और मैं भी। मेरा ख्याल है कि मेरी भी यह ख़ानदान से दूर दराज की रिश्तेदारी है। क्या इस ख़ानदान का कोई आदमी अब भी जिंदा है? नहीं, वालिद ने जवाब दिया। अरसा हुआ इस खानदान का नामो निशान मिट गया। जंगली उन्हें ले डूबी। अब तो उनकी अजमत रफ्ता की यादगार एक किले के खंडर तक है, जो यहाँ से 3 मील दूर होंगे। खूब, कारमिला ने बेदिली से मुस्कुराते हुए कहा, फिर हाल कमरे के खुले दरवाजे से बाहर झांकती हुई बोली, कितनी हसीन चांदनी रात है, चलो खुली हवा में घूमते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी खूबसूरत चांदनी रात थी जब तुम पहली मर्तबा यहाँ आई थी। कारमिला ने कोई जवाब ना दिया। अपनी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर डाले मुस्कुराती रही। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हम दोनों मटर गश्त करते हुए बाग में पहुंच गए और पुख्ता रवशों पर टहलने लगे। टहलते टहलते थक गए तो उसी बेंच पर बैठ गए। कारमिला चांद की तरफ देखने लगी, फिर अचानक उसने अपना रुख मेरी तरफ किया और सरगोशी करते हुए बोली, तो तुम उस रात के मुतल्लिक सोच रही थी जब मैं आई थी। क्या मेरे आने से तुम वाकई खुश हो? बहुत कारमिला प्यारी, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें उस औरत की तस्वीर भी अच्छी लगती है जिसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती है और तुम उसे अपने कमरे में लटकाना चाहती हो। बिल्कुल। उसने दफतन फरते जज्बात से बेकाबू होकर मुझे अपने जिस्म के साथ लिपटा लिया और प्यार करने लगी। प्यार करते करते अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और अपने गाल मेरी गर्दन से रगड़ने लगी। लारा, तुम कितनी अच्छी हो। हम दोनों एक जान दो कालब हैं। मुझे हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है और तुम भी मुझ पर मरती हो। उसके लहजे में न जाने क्या बात थी कि मेरे जिस्म में बेइख्तियार खौफ की सर्द लहर दौड़ गई और मैं बदक कर नीचे उससे उठ खड़ी हुई। वो मुझे घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले सी चमक और रोशनी ना थी। चेहरा भी जर्द और फीका पड़ गया था। लड़खड़ाते हुए लहजे में यूं गोया हुई जैसे कोई नीम गनूदगी के आलम में बोल रहा हो। क्या हवा में ठंडक है प्यारी लारा? मुझ पर कपकपी क्यों तारी हो गई है? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही थी। चलो अंदर चलें। तुम्हारी तबीयत नासाज मालूम होती है कारमिला, गशी का दौरा पड़ गया था शायद। अंदर चलते हैं। शराब के एक जाम से तुम्हारी तबीयत फौरन संभल जाएगी। हाँ, मैं अब ठीक हूँ। चंद मिनटों में मेरी तबीयत बहाल हो जाएगी। थोड़ी सी शराब मुझे ज़रूर देना, उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। दहलीज पर पहुंचकर रुक गई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी,
आओ आखिरी बार चांदनी का नज़ारा कर लें। आज के बाद शायद मुझे तुम्हारे साथ चांदनी का नज़ारा दोबारा नसीब ना हो। उसकी हालत में इस अचानक तगय्युर से मुझे बेहद तशवीश हुई। गिरदो नवा में पुरइसरार बीमारी का जोर था। रह रह कर ख्याल आता, कारमीला भी कहीं उस वबा का शिकार तो नहीं हो गई। चुनाचा उसकी बात सुनी अनसुनी करके पूछा, अब तबीयत कैसी है? क्या वाकई ठीक हो? पड़ोस के गांव में एक बहुत अच्छा और तजर्बेकार डॉक्टर रहता है, वही जो अब्बा के साथ था। कहो तो उसे बुलवा भेजें, वो ज़रूर तजर्बेकार डॉक्टर होगा। कारमीला मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन अच्छी लड़की, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। मामूली सी कमज़ोरी और नकाहत के सिवा क्या शिकायत है? मैं ज़्यादा मेहनत मशक्क़त की आदी नहीं ना। चलना पड़ जाए तो जल्द नढाल होकर बेदम हो जाती हूँ और मुझ पर गशी का हल्का सा दौरा पड़ जाता है, वैसा ही जिसका मुशाहदा तुमने आज किया। देख लो, अब मैं अच्छी भली हूँ। रात के खाने पर कारमीला अगरचे ड्राइंग रूम में मौजूद थी, लेकिन वो खाने में शरीक ना हुई। एक तरफ बैठी बातें करती रही। उसकी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो चुकी थी और वो बड़ी हशाश बशाश नज़र आने लगी। खाने से फारिग होने के बाद हम सब ताश खेलने बैठ गए। वालिद ने ज़्यादा दिलचस्पी ना ली। चंद बाजियां खेलने के बाद उन्होंने ताश एक तरफ डाल दी और अचानक कारमीला से मुखातब हुए, तुम्हारी वालदा की तरफ से अभी तक कोई खबर या पैगाम मौसूल नहीं हुआ। तुम जानती हो उसे किस पते पर ख़त लिखा जा सकता है? जी नहीं, कारमीला ने सर झुकाए जवाब दिया, मैं कुछ नहीं बता सकती। फिर कदरे तवक्कुफ़ के बाद दोबारा बोली, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी वजह से आपको ख्वामख्वा ज़हमत उठाना पड़ी। आपका मुशफ़क़ाना और हमदर्दाना सलूक और मेहमान नवाजी मुझे उम्र भर याद रहेगी। मेरा इरादा है कि सुबह सवेरे पहली घोड़ा गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाऊँ। मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही किसी न किसी तरह वालदा तक पहुँच जाऊँगी, लेकिन कैसे, इसका जवाब सरोसत नहीं दे सकती। पगली कहीं की, वालिद ने प्यार से डांटा और नहायत मुशफ़क़ाना लहजे में बोले, इस तरह का ख्याल दिल में भी ना लाना जब तक तुम्हारी वालदा खुद ना आ जाए, उसका कोई पैगाम ना मिले। मैं तुम्हें अकेले दर बदर भटकने की इजाज़त ना दूंगा। तुम्हारी वालदा तुम्हें मेरे सुपुर्द कर गई हैं, उसका कोई पैगाम आ जाता तो मुझे खुशी होती। गिरदो नवा में फैली हुई पुरइसरार वबा रोज़ बरोज़ तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। डरता हूँ कि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी वालदा को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूँगा। बीमारी के खतरे के पेश नज़र मैं तुम्हें यहाँ से तनहा जाने की इजाज़त भी नहीं दे सकता। वालिद का जवाब सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मेरी दिली ख्वाहिश भी थी कि कारमीला अभी यहीं क़याम करे। कारमीला ने चंद मुनासिब अल्फाज में वालिद की इस नवाजिश और मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं हस्बे मामूल उसे छोड़ने कमरे तक गई। कमरे में पहुंचकर हम बिस्तर पर बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने कदरे शाकियत अमीज़ लहजे में कहा, तुम्हें मुझसे हरगिज़ सच्ची मोहब्बत नहीं, वरना अब तक ज़रूर मुझे अपना राजदार बना चुकी होती। क्या मुझ पर भरोसा नहीं? कारमीला पहले तो कुछ ना बोली, शौक नज़रों से देखती मुस्कुराती रही। फिर कहने लगी, मेरी अच्छी बहन, ये बात नहीं, तुम मुझे बेहद अजीज़ हो। तुमसे ज़्यादा और कौन मेरा राजदार बन सकता है? मजबूरी ये है कि मैं कौल दे चुकी हूँ। मैं अपना राज भी किसी पर ज़ाहिर नहीं कर सकती, तुम पर भी नहीं। ताहम वो वक़्त ज़्यादा दूर नहीं जब तुम्हें सब कुछ खबर हो जाएगी। गुफ्तगू के दौरान में उसकी तेज़ और चमकती नज़रें बराबर मेरे चेहरे पर जमी रहीं। मैं कमरे में जिधर जाती उसकी नज़रें मेरा पीछा करती और उसके होंठों पर एक मैनी खेज और पुरइसरार मुस्कुराहट खेल रही थी। मैं कोशिश के बावजूद उसे कोई मैनी ना पहना सकी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा जी घबराने लगा और उसकी बातों से वहशत होने लगी। चुनाचा फौरन शब्बे बखैर कहकर अपने कमरे में आ गई। मुझे अक्सर हैरत होती, कारमीला किस वक़्त इबादत करती है। मैंने उसे कभी खुदा का नाम लेते या उसके हजूर झुकते ना देखा। सुबह दिन चढ़े बेदार होती और शाम को जब बलाई मंजिल के कमरे में इबादत के लिए इकट्ठे होते, वो बदस्तूर ड्राइंग रूम में बैठी रहती। मज़हब के मौजू पर हमने भी कभी गुफ्तगू ना हुई।
एक दिन उसके मुंह से इत्तफाकन स्वस्थ का जिक्र ना सुनती तो यही समझती कि वो ईसाई नहीं किसी और के मजहब के पैरोकार है। असाबी मरीजों की एहतियात पसंदी मुतअद्दी अमराज की तरह गैर महसूस तौर पर फैलती है। कारमीला की तरह मेरे जहन में भी ये ख्याल रासख हो गया कि आधी रात के वक्त चोरों और नकब जनों का खतरा होता है। चुनाचा लेटने से पहले हमेशा सब दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर देती। रात भर एक शमा मेरे सरहाने जलती रहती। ये मेरी बचपन की आदत थी और उसे तर्क करते हुए मुझे खौफ आता था। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के बाद किसी कदर अत्मीनान हो जाता और मैं मज़े से बिस्तर पर लेट जाती। लेकिन इन तदबीरों से भला ख्वाबों को कब जंजीरें पहनाई जा सकती हैं जो मोटी पथरीली दीवारों में से गुजरकर बेहानक जलवे दिखाती हैं। उस रात मैंने जो हैबतनाक ख्वाब देखा वो आने वाले दिनों में करबो अजियत के एक तवील सिलसिले की पहली कड़ी थी। मैं उसे भयानक ख्वाब नहीं कह सकती क्योंकि नींद में होने के बावजूद मेरा शऊर पूरी तरह बेदार था और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कमरे में बिस्तर पर दराज हूँ। कमरे की हर शय अपनी अपनी जगह पर मौजूद थी। सिर्फ इतनी तब्दीली ज़रूर हुई थी कि रोशनी के बजाय मेरे चारों तरफ गहरी तारीकी मुसल्लत थी। दफतन महसूस हुआ जैसे पाइंती की तरफ कोई जानदार शय हरकत कर रही है। थोड़ी देर तक महज एक ह्योला सा दिखाई देता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो गईं तो एक काला भंजंग जसीम और कद आवर जानवर नजर आया। उसकी शक्ल खौनख्वार जंगली बिल्ले से मुशाबे थी। वो बार बार गुर्राता और बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रहा था। फरते खौफ से मुझ पर सख्ता तारी हो गया। चीखना चाहा मगर मुंह से जरा आवाज ना निकली। जंगली बिल्ले की गुर्राहट लम्हा बे लम्हा बुलंद से बुलंदतर होती जा रही थी और उसकी बेचैनी में इजाफा हो गया। उसने तेजी से कमरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। जल्द ही कमरे में फैला हुआ अंधेरा गहरा होने लगा और उसने कमरे की हर शय निगल ली, लेकिन जंगली बिल्ले की दहकती हुई आंखों की रोशनी मादूम ना हुई। अचानक उसने छलांग लगाई और पलंग पर चढ़ आया। बड़ी बड़ी सुर्ख अंगारा आंखें आहिस्ता आहिस्ता मेरे चेहरे पर झुकने लगीं। अगले ही लम्हे मुझे अपने सीने में शदीद चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने दो लंबी तेज और नोकीली सुइयां जिस्म में घोंप दी हों। दर्द की शिद्दत से बेइख्तियार चीख निकल गई और मैं तड़प कर उठ बैठी। कमरे में शमा की रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी में नया मंजर देखा। पाइंती की तरफ एक औरत का ह्योला सा दिखाई दिया, सर से पांव तक लंबे ढीले ढाले स्याह लिबादे में लिपटी हुई। उसके लंबे स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए। औरत पत्थर का बुत बनी बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। सांस लेने की हल्की सी आवाज़ सुनाई ना देती। मैं उसे टिकटकी बांधे घूरती रही, लेकिन खौफ के मारे मुंह से कोई आवाज़ ना निकली। अचानक वो दरवाजे के करीब जा खड़ी हुई, फिर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। पुरइसरार औरत के बाहर निकलते ही जैसे यकायकी मेरे सीने पर से कोई भारी बोझ हट गया और मैं पूरी तरह बेदार हो गई। होश में आने के बाद सबसे पहले मुझे कारमीला याद आई। मैंने सोचा ज़रूर उसकी कोई शरारत थी। रात दरवाजे की चटकनी खुली रह गई और उसे अंदर आने का मौका मिल गया। बिस्तर से कूद कर दरवाजे के पास पहुंची तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े और सारा कमरा तेजी से घूमता हुआ महसूस होने लगा। दरवाज़ा अंदर से बदस्तूर मुतकफल था। मारे डर के उसे छूने या खोलने की जुर्रत ना हुई। चंद सानिये बुत बनी इसी तरह आंखें फाड़े ताले को घूरती हुई, फिर झुंझरी सी लेकर उसकी तरफ दौड़ी और मुंह सर चादर में लपेट कर दुबक गई। सुबह होने तक यूं ही पड़ी रही और इसी तरह बेसुध। खौफ का यह तजर्बा मेरे लिए बिल्कुल अनोखा था। उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन ना था। भयानक और डरावने ख्वाबों का असर और एहसास कुछ वक्त गुजरने के बाद खुद ब खुद ज़ाइल हो जाता है, लेकिन रात के डरावने वाक़े ने मेरे कल्बो ज़हन को बुरी तरह झंझोड़ डाला। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी शिद्दत कम तो क्या कुछ और बढ़ गई और जल्द ही मेरी ये कैफियत हो गई कि दिन के वक्त भी तन्हाई से खौफ आने लगा। एक मिनट भी तन्हा ना बैठ सकती। अब सोचती हूँ मुझे सारा वाक़या वालिद के गोश्त गुजार कर देना चाहिए था।
लेकिन वजूद से हिम्मत ना पड़ी। अव्वल तो अंदेशा था कि वो मेरी कहानी सुनते ही मेरा मज़का उड़ाने की कोशिश करेंगे, फिर इस बात का अमकान भी था कि वह मुझे पुरइसरार वबा का शिकार समझ बैठते और ख्वाह मख्वाह परेशान होते। पिछले चंद दिनों से वो हर वक्त कुछ न कुछ खोए हुए से नजर आते। ऐसे में अपना किस्सा सुनाकर मैं उन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी, चुनाचा मजबूरन खामोशी इख्तियार कर ली। मादाम पेरिडॉन और ला फोल्टन भी कई दिन तक असल वाक़े से बेखबर रहीं। उनका ख्याल था कि मुझ पर अफसुर्दगी का दौरा पड़ा है और किसी असाबी मर्ज में मुब्तला हो गई हूँ। दोनों मुझे खुश रखने के लिए तरह तरह के जतन करती, लेकिन बेसूद। मेरी दहशत ना कम होनी थी ना हुई। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उन्हें दिल के बोझ की हकीकत से आगाह कर दिया। दोनों का रद्द अमल मुख्तलिफ था। मादाम ला फोल्टन ने मेरी बात सुनते ही जोरदार कहका लगाया और बोली, तुमने ज़रूर फिर कोई डरावना ख्वाब देखा है मेरी बच्ची, इसे भूल जाओ, सब वहम की कारस्तानी है। बात ख़त्म करने के बाद मादाम ला फोल्टन ने एक और कहका लगाया, लेकिन उनके कहकों में कोई जान न थी। मादाम की आवाज़ और लहजा उसकी दिली अज़तराब और तशवीश की चुगली खा रहा था।